Hi everyone. Basically, my name is Abhishek, and I'm speaking from Wastefire at Tech Private Limited, and we are here with Kunal as well today to host the webinar of data analytics. So, as everyone knows about data analytics, in like today's world itself, basically it's the ability to extract data as well, and also use it for the benefit of the company itself. So we have Kunal from Grant Thornton Bharat itself, who will be helping us, okay, and also making us understand the topic of data analytics. All right. So Kunal, I'll just let you share the screen. Sure, sure, Okay. sure. Abhishek, would you like to say something about Wastefire and why are you conducting this webinar? Yeah, sir. Sure. So Vespa is basically an edtech company, an edtech company that provides training and internship programs for students who want to upskill themselves and also looking for internship experience. Okay. So basically, we are covering two domains such as engineering and management, and we are have over 20 programs itself. So if anyone, whether he's a working professional or a student, wishes to upskill or require any experience, so we're providing that itself at Wastefire. Okay, thank you, Abhishek. So, shall we continue with Kunal now? Yes, sir, we can. Okay. I hope my screen is visible to you all. Yes, sir. Okay, great, great. So, Just raise your hand if it's sorry. visible. And I'm asking the students if it's visible, they can Okay. just stay on the chat or not. Okay, great. So, my name is Kunal Raval, as introduced by Abhishek. So, I work as an assistant manager in Grant Thornton Bath, and I'm handling business analytics, business intelligence, and advanced analytics practices over there. So, it's been a good 5.5 years of total tenure of mine where I've been investing my time in problem solving using data analytics, right? Strategizing, some things, and help organizations increase their revenue, increase their profit, right, and do multiple things around the data. So as Gautam Adani said that data is the new oil, right? So everyone knows that 2012 2013 we were not habitual of using that much YouTube and Uber, Ola, Food Panda, Swiggy, Zomato. These applications were not there and they were not even functioning at that point of time. So the main thing about data is the revolution has started to increase after Geo came, or maybe the internet services were, the cost of the internet services were reduced down, right? And there's a statistic that I was reading, a few days ago. It says that 70 to 75% of the data that has been generated till now, right, and 75% of that entire data has been generated in last decade, like 10, 12, or 15 years. So you can imagine that how much revolution we have created in generating good data. And you all might be saying this thing that analytics and data science and machine learning and all these things, they are new things. It is not, right? So machine learning algorithms and the basic analysis, it was being done since a very long time, right? So just for an example, I would say cholera, right? So it broke out in 1854, right, around 1850s. And John Snow, who was, basically a statistician, he wrote a letter to the editor of Medical Times. And by seeing the data, or by analyzing the things and seeing the circumstances and situations, he observed that the outbreak of cholera, and there was particularly no outbreak of cholera in London except for the person who were drinking water above the pump well, right? So that's basically a sort of an analysis. You see that what the historical trend is, and what is the repetition, what is the pattern look alike in any particular scenario. We as humans, we do have a habit of forming a pattern,
It can be anything. If you'll scroll Instagram, there's a proper pattern that you follow, right? It might be after 9 p.m. It might be after 8 p.m. It might be after 7 p.m. There's a reason why IPL matches, they are, telecasted after 8 p.m. as well, because they know every people who goes to work, who studies in college, right, and who goes to school, they get free around 8:30. So at least they can get good viewership on those, telecasting, live telecast of the sports, of anything. So these things are very much understood and very much simple if you will, try to comprehend what's basically going on. So just for an example, I'll give you another thing. Let's say you have added a particular item and you're using Myntra, right? And you have added that particular item into your cart. For women, any makeup item, any particular dress. For male, it can be, anything related to electronic gadgets and whatever. So you will see one thing that after a certain point of time, either Myntra or Amazon, they will give you a coupon code, right? Or maybe they will try to reduce it down, because the data is getting stored on the Amazon side or on the Myntra side as well. They are constantly observing your pattern. They are seeing that any particular XYZ human, he is holding particular item in his cart since past 3 or 3.5 days. So they just, try to comprehend or try to see that whether this person will buy this product if we lower the price a little bit down. That's the reason sometimes you see different prices of different products on different portal, right? Your friend might be seeing that particular product of 290 rupees, but you might be seeing 240 rupees. So this is the only reason why, these coupon codes, these, these things work, this analysis works, because eventually it's a human pattern, right? And we as a human, we follow some sort of pattern, we follow some sort of, you can say, synchronicity in our behavior, and the data eventually aligns with that particular thing. So meanwhile, if anyone has any question, you can directly ping me on the chat. I'll try to answer it then and there itself. Any question as of now? Okay, I'm moving ahead now. So as I mentioned, that analytics is not something that has been derived since past 5 or 10 years or 15 years, right? It has been, following since a very long period of time. So another good example of analytics is Ford. Everyone know about Ford, the automobile company. So in 19th century, the first implementation of analytical project happened, like sort of a project, not exactly an IT project, but some sort of analysis happened actually, right? So Henry Ford basically had some assembly lines in which the spare parts or maybe some, you can say, entities of any Ford car was being prepared. So he analyzed that there's something patternable and something recognizable that he can see on the conveyor belts, right? It can be anything, the time duration of, any part X moving from the 0th position to the end position. So in that case, he just, tried to understand a little bit more about the thing, that how much electricity is being consumed. So let's say any one of you is an owner of an automobile company, right? Now they are paying some billable amount as a form of electricity of running the conveyor belt, right? And you are running it 24/7. Now just tell me one thing. If in case the total spare parts that you have produced on a conveyor belt, right, it's, let's say, $100,000, right? And the profit that you are making is close to $15,000. So out of 1 lakh, you are making $15,000 as your profit. Now just see one thing. If your conveyor belt is right now, sitting idle for, you can say, 6.5 or 8 hours, right? And the electricity bill that government is going to charge from you is close to $20,000. So do you think that's a fair deal? No, because you are able to manage or able to produce a revenue of $15,000, but for the electricity part you are paying $20,000, right? So it means you need to prepare something, you need to do some little bit of tweaks, or maybe something like of strategizing things in a better way, just to avoid lesser consumption of the electricity, which may result into profit, right? So let's say I'm saying that
For 8 hours, I'm not running my conveyor belt. There's no spare part that is being transferred from A point to B point, right? So maybe I can shut it down for 8 hours. My costing of the electricity will reduce to 1/3. Is that so? Right? And anyhow, these things basically, combine multiple things like these combine, and then a business becomes a profitable thing. So I would request everyone to please make it an interactive session, and I would want people to ask a little bit of questions, anything related to analytics, anything related to what you have understood as of now, or any doubt. Okay, so Pihal said, is this webinar useful for non-technical background students? Yes, it is. It's absolutely. There's no, see, the thing is the data analytics in terms of IT is being, introduced in past 15, 20 years, right? And specifically in India, in the last 5 years, you might be seeing these advertisements related to data science, machine learning, right? And in you can say business analytics and all that stuff. So there's no bar on your technical or non-technical background. I've seen people who are into political science, who have done their graduation in political science, BA in history, BA in maths, right, and BSc in physics. Those sort of people have also managed to get a job into data science, into data analytics, right? It's just that you have to be worthy of some particular skills, some particular tools, right? You should know how to analyze data. You should know what questions to ask. You should know what your approach should be, and you should be having 70 to 80% grip of some of the tools. If you have it, you can easily crack a job in data science and data analytics. Any more question? Okay, I'm moving ahead. Hello. Yeah. Hello. Hello. Yeah. Sir, can you tell about the job opportunities in this field? Okay. So, may I know your name, please? My name is Anurag. Anurag. Okay. So, Anurag, see, consider analytics as the apex entity of the ecosystem, right? To execute any particular data analytics project, you need multiple things. You need a data analyst, you need a data scientist, you might need specifically cloud computing engineers, you need someone who can prepare good reports, you need someone who is good at statistical analysis, you need someone who can be a business analyst who can translate the requirements from the consumer or maybe your client into technical form and then get the project executed. So it's basically 5 to 6 particular things they are combining as a data analytics team, right? So you can choose anyone. If you are good at coding, very good at Python, or maybe you are very good at making logics with a programming language, so you can definitely go for specifically for data science, for specifically for data engineering, right? Who can pull the data from X place to Y place, who can do some sort of pre-processing, who can do some sort of data manipulation. If you are good at designing reports, if you are good at how do I say? So let's say the person who's able to sell anything, who's able to portray things in a very efficient way. So at that position, business intelligence, business, BI developers come into the picture. They know what to show, how to show, what particular graph should be, there, just so that the end consumer, they are able to comprehend each and everything very easily. Then we have business analysts, then we have AI and ML engineers, right, who are able to like with the help of your data, they can try to do some sort of mathematical calculation, then then get you a number. Yes, okay, after falana time, or maybe 1.5 years or maybe 2 years, this will be your sales revenue, this will be your profit, this will be your costing, right? This will be your marketing campaigns revenue. So multiple things combine, and then you can choose any of the things that you want to. You just have to recognize what kind of a person you are. If you are need little bit of you can say the person who wants to do only coding, right? Python is very good for you. The person who is very good at art and creativity, they know how to present data, then business intelligence is for you. Okay, sir. Yeah. Anyone else?
The models made, Anand Gupta, the models made using machine learning algorithms are not accurate always. There are always chance of errors, but still we rely on them. Why is it so? Okay. See, Anand, as far as I know, the machine learning algorithms, they are all pre-prepared, right? There's some, you can say, research happened. These algorithms are already made. If you'll, pursue MSc in stats, BSc in stats, you will be able to learn all these things, right? So there's a term called hyperparameter tuning in machine learning. So what hyperparameter tuning means, see, if I type on Google, give me a machine learning algorithm for linear regression, right? You will get n number of URLs, n number of people who have posted, their Python code for implementation of linear regression. But you must first of all see what does it take to complete that particular project, right? You need to have good clarity of your independent and dependent variables, right? Hyperparameter tuning means ki if I want to tune my model little bit, so I'll give you an example, right? So let's say I am a sabji bechne wala, right? And I came to Anand and Anand said, okay, Kunal, I'll do one thing. As per the data, it shows ki the more tomato that you buy from the mandi, the more revenue you will be getting, right? So my revenue is directly correlated to tomato, the amount of tomato that I sold, right? Being a vegetable seller, right? But there might be some scenarios in which I would say ki, let's say you have not considered my thela. How does it look, right? My location, where am I, selling my vegetables? So let's say I'm selling in a sector and I'm selling in a colony, right? There might be difference. So these things sometimes, as you said, that they are not always accurate, but they are close to the nearest thing, right? And it depends. You get a good hold of things. You see that what can be done and what cannot be done. So considering the example that I gave, you only told me, Kunal, the more tomato that you will buy, the more revenue you will be generating, right? But my selling of my vegetables is directly proportional to the cleanliness of my thela, right? What thela am I using right now? The banners that I have right now, the location that I have right now. These things are hello. Yeah. So these things also play a very crucial role, right? It's not 100% accurately, but if we are able to reach 90% of what we are predicting, don't you think it's a fair deal? Are you clear? Just ping me on the chat. Yes, sir. Okay. Anyone else? Great, great. Anyone else? Hello, sir. Yeah, Ashish. Yes, sir. Sir, I have one question, sir. Mm-hmm. Sir, how can beginner without a technical background start their journey in the data analytics field? Okay. So first of all, I would say you should first identify yourself first, right? Where are you standing right now? Because data analytics is solely related to your curiosity, right? How much curious you are. Because let's say I do have a data with me and I saw कि यार month of August में my sales jumped off to 800%, 8 times बढ़ गई वो. If you are curious to know why this 800% spike came up, then you decide to enter into data analytics. Because in analytics, you need to ask a lot of questions to the data, to the business owner, and from yourself as well. कि यार ये हो क्यों रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है ये? Yes, sir. अगर let's say I'll give you an example, right? So I deal with hydrological data as of now in the project I'm working, right? And water level का data आता है मेरे पास. I think everyone is comfortable with Hindi. Yes, sir. Okay, right. So water level का data आता है मेरे पास. So let's say for in 2015 on any particular month on any particular day, the amount of water level in Ganga River, it was 1000% more than what it used to be, right? Yes, Ab sir.
if you are able to see that spike, you need to ask this question कि ये 1000% कैसे आ गया. Then I'll go to the calendar, I'll see कि उस दिन हुआ क्या था. उस दिन केदारनाथ का फ्लड आया था and गंगा रिवर उत्तराखंड से ही बन के निकलती है, right? Yes, sir. So first you need to be curious. सबसे पहले आपको curious होना पड़ेगा कि why is it happening. Second चीज, you need little bit of patience, right? देखो 4 साल बीटेक करने के बाद sometimes people do not get a job. बहुत जल्दी नहीं मिलती है, right? We all know that. That's the harsh reality of our, you can say, education system or whatever it is. जो भी बोलना है उसको ले सकते हो. But 4 साल बीटेक करने के बाद आपको जॉब मिलती है. So you should not go panic कि यार ठीक है मेरे को 1 महीने में चाहिए. You should be patient. आपको patience रखना पड़ेगा. You should be disciplined. You should be having habits related to asking lot of questions. Curious होना पड़ेगा आपको. Then jump off to the technical things, right? What I believe, in any profession, you need to be worthy of it. If I'm not good at sales, I need to be good at speaking, communicating, convincing people, getting their psychology, seeing what they want, asking their demands. Then I'll be worthy of, being a good salesman. So same goes for the people who want to enter into technical field, who want to enter into data analytics. They must be having these 2 or 3 things. Apart from that, they should start learning some technical concepts as well. कि अगर data है तो data क्यों है, data कहाँ पे store होता है, data को fetch करना है तो कैसे करना है, data को change करना है तो कैसे करना है, data को analyze करना है तो उसके कौन-कौन से हमारे पास methods हैं, right? Right, sir. तो ये सारी चीजें you should be able to figure out first. उसके बाद start the implementation, start the learning. It will take some time. It will take 8 months, 9 months, 10 months, 12 months. It might take 12 months. No problem. But you should be completely adamant to your vision. Yes, after 1 year, I want to see myself into data analytics. I want to see myself highly proficient in Python. I want to see myself highly proficient in Power BI or Tableau. I want to see myself highly proficient in SQL and statistical analysis. Then you're good to go, buddy. Right, sir. Right. So have I answered your question? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Thank you, sir. Manish Nehra. Okay, you want to ask something else as well? Okay. What are the most effective data analysis technique for identifying trends and patterns in large data sets, and how can they be applied to make data-driven decisions in blogging, writing industries? Okay. So Manish, very good question. So see, first of all, I'll show you something related to what you want using a PPT. Where is it? Right. So see, you are asking about blogging and writing industry, right? So when we'll start working on data analytics projects, you'll see 3 different terms. First is descriptive, second is predictive, third is prescriptive, right? So descriptive analytics is the component, or maybe it's an arm of data analytics, which basically shows what has happened in the historical time, right? कल तक क्या हुआ था मेरे डेटा के साथ. So as per you said कि कुणाल मेरे को trends identify करना है, right? So what I'll do, first I'll see कि how many content or how many posts that I've published on my LinkedIn or any blog website या फिर Medium पे कहीं पे भी, right? So you'll see the amount of viewers, कितने viewers आ रहे हैं आपके पास, कैटेगरीज क्या हैं आपकी. अगर आप एजुकेशन के बारे में कोई पोस्ट डाल रहे हो, या फिर आप ट्रैवलिंग के बारे में कोई ब्लॉग डाल रहे हो, या फिर आप टेक्निकल चीजों के बारे में कोई ब्लॉग डाल रहे हो, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर ऑडियंस. आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है. इफ यू आर पोस्टिंग थिंग्स और टेक्निकल बट आपके व्यूअर्स ट्रैवल की ज्यादा मांग रहे हैं, तो यू विल सी कि मैं ग्राफ से देखता हूं कि यार मेरे कितने ऐसे ऑडियंस हैं जो मल्टीपल चीजें देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पाई चार्ट बनाया, सी दिस इज अ पाई चार्ट. Let me share my entire screen again. सी आप ऐसा ग्राफ बना सकते हो कुछ कि अच्छा मेरे ट्रैवलिंग के इतने % लोग हैं, मेरे टेक के इतने % लोग हैं, एंड देन मेरे जो मेरा वीडियो कंटेंट देखते हैं वो इतने % लोग हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में कंटेंट देखते हैं वो इतने % है, राइट? सो इससे आपको पता लग रहा है कि आपका 1, 2 and 3, these 3 are the majority of categories
in which your people are spending time to view your content, right? So this is all about trend. अगर आपको और देखना है तो we have bar charts, ठीक है? बार चार्ट क्या करते हैं? सी, दिस इज व्हाट अ बार चार्ट इज. सो आप क्या कर सकते हो, आप या तो अपनी कैटेगरी के अगेंस्ट दे सकते हो कि अच्छा व्लॉगिंग के लिए इतना है, यूट्यूब के लिए इतना है, साइबर सिक्योरिटी के लिए इतना कंटेंट देखते हैं, ट्रैवलिंग के लिए इतना देखते हैं. अगर आपने वो पाई चार्ट से देख लिया तो यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हो कि 12 से 10 के बीच में कितने लोग आते हैं, 10 से 2 के बीच में कितने लोग आते हैं, 2 से 5 के बीच में कितने लोग आते हैं, 5 से 12 के बीच में कितने लोग आते हैं, राइट? सिमिलरली आप एज के बेसिस पे देख सकते हो कि 22 इयर्स की एज के लोग इतने हैं, एंड 15 के इतने हैं, 34 के इतने हैं, देन 28 के इतने हैं, एंड फलाना फलाना जो भी हो सकता है, राइट? बिग बॉस देखा है? Okay. Anyone else? Next question. Kunal, I think you can continue. Okay, sure. So coming to the PPT again, I said that there are three arms of data analytics. One is descriptive, one is predictive, one is prescriptive. As mentioned earlier, descriptive होता है जो हमारे पास historical data है, right? Average कितना है, mean कितना है, number of people कितने visit कर रहे हैं, week over week average कितना है, last month के comparatively इस month कितना profit हुआ है हमें, right? एंड हमारा कितने एज ग्रुप के लोग हमारा कंटेंट देख रहे हैं, कितने डेमोग्राफी से हमारे कंटेंट देख रहे हैं, कितने कितने स्टेट से हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, राइट? जो आपके हिस्टोरिकल डेटा की जस्ट स्टैट्स बताएगा आपको. नेक्स्ट कम टू प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. अब प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है? द नेम सजेस्ट एवरीथिंग, राइट? प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, यू आर प्रेडिक्टिंग समथिंग, यू आर सेइंग कि आगे ऐसा होगा, राइट? सो यहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आ जाती हैं कि क्या आपका ये प्रोडक्ट सेल आउट होगा कि नहीं होगा, क्या आपकी ये बुक बेस्ट सेलर हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्या आपके रेवेन्यू $100 मिलियन होगा कि नहीं होगा, राइट? तो ये आता है प्रेडिक्टिव के अंदर. देन कम्स द प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स पार्ट. अब प्रिस्क्रिप्टिव का नाम है, डॉक्टर के पास जाते हो, प्रिस्क्रिप्शन लेटर मिलता है आपको. सो सेम गोज फॉर एनालिटिक्स एज वेल. प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में आप प्रिस्क्राइब करते हो कि कुणाल अगर आप इसको ऐसे करोगे तो आपको इतना बेनिफिट हो जाएगा, अगर आप इस मार्केटिंग कैंपेन को वेस्ट बंगाल में रन करोगे तो आपको 10,000 फॉलोवर्स मिल जाएंगे, अगर आप अपनी इस इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर ये वाला गाना लगाओगे तो आपकी रील पे 20,000 व्यूज आ जाएंगे. दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. Am I clear? Any question, any doubt? Okay, I'm moving ahead. Now there's a case study, beer versus diaper. I don't know how many of you have basically gone through it. So this is not actual data, but this is just an observation that striked during this case study. So beer versus diaper case study said कि the people that were men who were of 30 to 40 years of age, right, and they were shopping between 5 p.m. to 7 p.m. they were likely to purchase a beer with a diaper. So that's why डाइपर और बियर आपको बहुत पास मिलती थी. जो भी इनके ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं वेस्ट साइड पे कहीं पे भी वेस्टर्न कंट्रीज में, तो कोई भी स्टोर्स होते हैं, जैसे हमारे रिलायंस मार्ट होता है, हमारे यहाँ 24/7 है, ऐसे करके बहुत सारे वहां पे भी होते हैं. तो ये स्ट्रेटेजिकली इनके जो कार्ट्स थे वो बिल्कुल आसपास ही रखे गए थे, बिकॉज दे न्यू कि जो लोग डायपर खरीदने आते हैं, जो मेन हैं, दे माइट बी लिटिल बिट इन स्ट्रेस, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होंगे बिकॉज दे हैव अ न्यूबॉर्न बेबी, रात को सो नहीं रहे होंगे, दे माइट परचेज अ बियर एज वेल, इसलिए उनके कार्ट बहुत पास में रखे जाते थे. अनदर थिंग इज मिल्क. सो एज वी ऑल नो, हम सबके घर पे चाय बनती है, हम सबके घर पे खीर बनती है, हम सबके घर पे घी होता है, तो दूध बहुत खरीदते हैं हम लोग. इट्स द मोस्ट परचेज आइटम इन एनी ग्रोसरी स्टोर. कहीं पे भी अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएंगे, मिल्क जरूर बिकता ही बिकता है. सो इट वाज ऑलवेज प्लेस्ड एट द बैक ऑफ द स्टोर. रीजन बीइंग कि आपको एक डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, एंड बीच में आपको कुछ ऐसे ऐसे प्रॉप्स दिखेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स दिखेंगे जो हो सकता है आप खरीद लो,
अगर मैं मिल्क सामने ही रख दूंगा तो आप कभी पूरी स्टोर को विजिट नहीं करोगे, राइट? आपको पूरा स्टोर विजिट करना पड़ेगा, एक लंबी सी लेंथ में आपको पूरा स्टोर को क्रॉस करना पड़ेगा, पूरी लेंथ कवर करके। बीच में कुछ अगर दिख गया आपको, 24/7 पे भी यही होता है, 24/7 पे खाने का सामान सारा पीछे है, अगर आप सब लोगों ने ऑब्जर्व करा हो तो। जो भी पेटीज, सैंडविच, ये सारी चीजें होती हैं, बट वो रास्ता जाता है बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक से होते हुए, मोगू मोगू एंड देन अपना रेड बुल हो गया, राइट? इनकी एनर्जी ड्रिंक्स हो गई, बिस्किट्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें, ओशियन वाटर हो गया, राइट? तो हम जब वो खरीदने जाते तो हमें रास्ते में बहुत सारी चीजें दिखती हैं, तो देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पर्सन बाइंग सम प्रोडक्ट अदर देन व्हाट ही केम टू परचेज, राइट? Any question, any doubt, anything, कुछ भी problem? No, sir. Okay. Great. So, how many of you have imagined कि sports के अंदर भी analysis होता होगा? आशीष नेहरा को सबने देखा है ना, पेन पेपर लेके बैठा होता है वो आईपीएल के टाइम पे। सो ही सॉर्ट ऑफ एनालाइजिंग द डेटा एक्चुअल में, राइट? अब स्पोर्ट्स में भी ना बहुत सारी चीजें हैं। इफ यूल सी, लेट्स से आई एम एन एडवर्टीजमेंट कंपनी, राइट? मैं गया आईपीएल वालों के पास या फिर सोनी के पास, एंड आई सेड कि ड्यूरिंग आईपीएल मेरे को एक एड चलाना है, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, राइट? अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मेरा एक क्लाइंट है जो फार्मेसी के लिए एड चलवाना चाहता है मेरे से, आपको लगता है मेरे को रात को 8 बजे एड चलाना चाहिए? No, बताओ sir. बताओ, एक्सपेक्टिंग सम रिप्लाईज। No, sir. व्हाई नो? सर रात को तो दुकानें बंद होती है ना, तो रात को मतलब फार्मेसी जो शॉप्स होती हैं वो बंद होती हैं, तो उनका ऐड चला के कोई फायदा नहीं है। ओके, ठीक है। सो अलका हैज सेड यस सर, आशीष हैज सेड यस सर। व्हाई सो? सर क्योंकि आईपीएल हमारे 7:30 से स्टार्ट होती है, हम्म, ठीक है, तो उस समय हमारी एड की सर रीच टाइम ज्यादा बढ़ सकती है। करेक्ट। ऑल्सो 8 बजे सब लोग अपने घर पे होते हैं जनरली, लाइक 70 to 75% फैमिलीज में सब लोग 8 बजे तक घर आ जाते हैं, ऑफिस वगैरह करके, सब कुछ करके। एटलीस्ट एक इनिंग तो देख ही लेते हैं 9 साढ़े 9 बजे आने के बाद भी, तो वहां पे आपका कन्वर्जन ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? अब मेरे को एक एग्जांपल देके बताओ, लाइक आई एम गोना आस्क यू अ क्वेश्चन कि मैं एक एडवर्टीजमेंट कंपनी हूँ, मेरे पास डुकाटी आई कि मेरे को एडवर्टीजमेंट करना है डुकाटी का, या फिर चलो केटीएम आई, बाइक है जो। मैं स्ट्रेटेजाइज कैसे करूं, मेरे को किस टाइम पे अपने एड्स चलाने चाहिए? लेट्स से आईपीएल का मैच हो रहा है, 2 बजे भी मैच होता है, 8 बजे भी होता है। सर 7:30 से मैच स्टार्ट होती है, तो आप 8 बजे वो ऐड चला सकते हो, क्योंकि राइट। ज्यादातर और सर लोग अगर मैं उसी समय अगर अवेलेबल अगर होते अगर हैं। मैं बोलूं कि मेरे को दोपहर में चलाना है, तो किस टाइम पे चलवाओगे बताओ? सर दोपहर में सर मैच स्टार्ट होने के आधा घंटा बाद। हाँ, बिकॉज स्कूल्स की छुट्टियां हो जाती हैं, एंड Yes, विशाल sir. सेड ऑन वीकेंड्स अराउंड 4 PM, करेक्ट। Yes, sir. स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां हो जाती हैं 2-3 बजे के आसपास। कॉलेज में तो चलो, कॉलेज में लोग थोड़ा लेट आते हैं, एटलीस्ट स्कूल में तो 2-3 बजे आ जाते हैं, राइट? कॉलेज में भी वीकेंड्स पे 4-4 बजे के आसपास अगर आप देखोगे तो सब लोग घर पे ही होते हैं, धूप हो रही होती है, तो मैं डेफिनेटली स्पोर्ट्स बाइक की एड उस टाइम पे चलाऊंगा। हल्का सेड लंच टाइम, करेक्ट, राइट? सो ये बेसिक स्ट्रेटेजीज होती हैं, राइट? एंड सी, अभी तो हम अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से एज्यूम कर रहे हैं सारी चीजें। व्हाट इफ आई से, अगर मेरे पास पैक्ड डेटा है जो मेरे को सब चीजें बता रहा है, तो मेरी कन्विक्शन और स्ट्रांग हो जाती है। अगर अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल, चलिए एक बात करते हैं, लेट्स से कि मेरे को एक प्रोडक्ट है मेरा कोई एक, जो मैं चाहता हूं कि वो बहुत जल्दी वायरल हो जाए। आप लोगों को लगता है कि मेरे को इंडिया पाकिस्तान के मैच वाले टाइम पे मेरे को लॉन्च करना चाहिए उस एड को?
राइट? क्योंकि सबसे ज्यादा व्यूअरशिप कब आती है? इंडिया पाक T20 मैच पे, करेक्ट? तो दिस इज बेसिकली कॉमन सेंस, एंड कॉमन सेंस को यूज करके हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई। कई बार कॉमन सेंस करेक्ट नहीं होती है जितना हम एज्यूम कर रहे होते हैं, उसके लिए हमें हिस्टोरिकल डेटा देखना पड़ता है। अभी हमें तो पता है आईपीएल 1.5 करोड़ लोग देखते हैं, या फिर इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होगा, सेमीफिनाले हो चाहे ओपनिंग मैच हो चाहे कुछ भी हो, 1.5 करोड़ 1 करोड़ लोग आते हैं उस पर आराम से, इनफैक्ट ज्यादा भी आ जाते हैं। तो हिस्टोरिकल डेटा हमें देखना बहुत जरूरी है, सो दैट हम कुछ इन्फ्रेंसेस निकाल सके। एंड इन्फ्रेंसेस मीन्स कि हम कुछ ऑब्जर्वेशंस ले सके, इसलिए डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स भी जरूरी है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स से हमें पता लगता है कि पास्ट में क्या हुआ था, एंड पास्ट एंड सी, हम सबको एक कहावत पता होगी कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं वो भी एक पैरामीटर होता है, आपका जो पास्ट में हो वो नेक्स्ट टाइम भी होगा, राइट? इसलिए आप देखो बिग बिलियन डे स्पेसिफिकली सितंबर के आसपास सेल हो रही है। अब लोग वेट कर रहे हैं बिग बिलियन डे का, फ्लिपकार्ट वेट नहीं करता कि मैं कब बिग बिलियन डे करूं। पीपल आर वेटिंग फॉर फ्लिपकार्ट बिकॉज उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजाइज करके स्पेसिफिकली पर्टिकुलर मंथ के अंदर, सितंबर वगैरह के टाइम पे, अगस्त सितंबर के टाइम पे उन्होंने इसको लॉन्च करा बिग बिलियन डे को। रीजन बीइंग कि शायद लोगों का यूजर बेस ज्यादा होता हो उस टाइम पे, राइट? या फिर आप ये बोल सकते हो कि बिग बिलियन डे पे जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, हो सकता है दिसंबर में एक्सपायरी हो। लेट्स से मेरा कोई प्रोडक्ट है जो दिसंबर में एक्सपायर होने वाला है, तो मैंने अगस्त सितंबर के अंदर बिग बिलियन डे सेल लगा दी, सो दैट मेरे प्रोडक्ट्स जल्दी बिक जाए सारे के सारे, राइट? सो दिस हैपेंस, ये सारी एनालिसिस होती है। अगर आप मिंत्रा पे जाओगे, फ्लिपकार्ट पे जाओगे, अमेजन पे जाओगे, उबर पे जाओगे, ओला पे जाओगे, आप जब अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हो, आपसे कुछ डिटेल्स मांगते हैं। वो आपका नाम पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे, एज पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, राइट? तो वो बस फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पूछते। फेस्टिवल्स आर आल्सो देयर इन दिस मंथ, करेक्ट? तो वो बस फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पूछते आपसे, वो एक्चुअल में देखना चाहते हैं कि लेट्स से अगर मैंने किसी की डेट देखी, राइट, एंड ही इज 1995 बॉर्न, तो आई नो कि 28 इयर्स का है। 28 इयर्स का बंदा है, तो उसको मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि उसकी सैलरी अच्छी होगी। ही माइट बी अर्निंग 40-50,000 60,000 पर मंथ, राइट? या फिर वो कोई बिजनेस कर रहा होगा। अगर वो 40-50-60,000 पर मंथ बना रहा है, तो मैं उसको हाई एंड के प्रोडक्ट्स एज अ सजेशन दिखा सकता हूँ कि आईफोन ले लो, आईफोन 13 ले लो 40,000 में, क्रेडिट कार्ड है, 10% वेव ऑफ हो जाएगा, एंड नो कॉस्ट ईएमआई, राइट? तो यहाँ पे, एंड सुप्रिया आल्सो सेड कि फेस्टिवल्स आर आल्सो देयर इन दिस मंथ, बिल्कुल करेक्ट है। रक्षाबंधन आने वाला है, सबको अपनी सिस्टर्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना होता है, राइट? वैलेंटाइन वीक होता है 14 फेब पे, वहां पे भी लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं इस पे, राइट? न्यू ईयर पे बहुत सारे, क्रिसमस पे लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो दीज थिंग्स आर ऑल प्लान्ड। ये ऐसे ही नहीं होती, मतलब इसको लाइटली मत लेना, ये एक्चुअल में स्ट्रेटेजाइज करा जाता है, डेटा को देखा जाता है, एंड देन कूपन कोड्स, प्रोमो कोड्स, राइट, फ्लैश सेल जो होती है, ये सारी बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड होती है आपका हिस्टोरिकल डेटा देखते हुए। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? Because of data analytics, companies collect user data using cookies and all. Due to this reason, privacy issues have increased. Should we fear this? See, अगर आपको फियर करने की जरूरत है तो वो है आपके पर्सनल डेटा की। अगर आप कुकीज से डेटा शेयर करने की बात करें तो कुकीज से आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री जा रही है, राइट? या फिर जो आपने कुछ वेबसाइट विजिट करी है, या फिर आप कौन कौन से लिंक्स पे क्लिक करते हो, वो जा रही है। I am much more concerned about my date of birth, my PAN card, my Aadhaar card, my net banking password and all these things. Plus, अगर आप बात करोगे, ये चीजें they are highly secured, right? Like I used to work on a project. It was a US based company का project, and जैसा हमारे पास आधार कार्ड होता है, right? So there's a social security number, SSN number होता है जो US में यूज होता है। एंड SSN नंबर इज सो इम्पोर्टेंट। आप अपने फ्रेंड्स को भी रिवील नहीं करते, बिकॉज आपके SSN नंबर से आपकी लोकेशन, आपका अकाउंट, आपकी प्रॉपर्टी, राइट, आपकी जॉब, आपका ऑफिस कहाँ पे है, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने एसेट्स हैं, वो सारे मैप्ड होते हैं। सॉर्ट ऑफ आप इंडिया का आधार कार्ड समझ लो उसको। तो SSN नंबर देता नहीं है कोई किसी को। हमारे पास डेटा आता था यूएस का, बट SSN नंबर मास्क करा जाता था, 1 2 3 4 देन XXXXX एंड आगे ABC, सो दैट जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो। देखो, नाम आपका पता लगा कि कोई क्या कर लेगा,
नाम ही तो है। एज से कोई क्या कर लेगा, राइट? आपके डेट ऑफ बर्थ से कोई क्या कर लेगा, एड्रेस से क्या कर लेगा, बट आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, दैट क्रिएट्स यू नो फियर इनसाइड यू, जैसे कि आपने बोला। एंड ऑल्सो जब भी कोई डेटा का प्रोजेक्ट होता है, सो इट इज ऑल अबाउट, अगर किसी को देना ही नहीं है एसएसएन नंबर तो उसको यूज ही क्यों करना। ओके देखो, अब मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल देके समझाता हूं कि एसएसएन नंबर आपकी, जैसे आधार नंबर आपका कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड है ना, राइट? सपोज करो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता हूं, अभी मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुलाया और मेरे को उन्होंने ये पूछा था कि आप बताओ कि किस किस के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो हैं, ब्लैक में है। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा? मेरे को आपका आधार कार्ड नंबर ही तो चाहिए होगा ना। अब वो आधार कार्ड नंबर मेरे पास पूरा नहीं आएगा, मेरे पास मास्क होके आएगा, वो मुझे कंप्लीटली नहीं दिखेगा कि वो नंबर कैसा है। बट मुझे लिंकेज सेटअप करने के लिए, मुझे देखने के लिए कि अच्छा आपका ये वाला पैन कार्ड आपका इस प्रॉपर्टी से लिंक्ड है, बट ये वाली प्रॉपर्टी आपके किसी और पैन कार्ड से लिंक्ड है, तो दो पैन कार्ड हो नहीं सकते। तो इस तरीके से चीजें आइडेंटिफाई हो सकती हैं। एंड यूज क्यों करना आपने जो पूछा, सो इंडिया में क्रेडिट कार्ड के लोन डिफॉल्ट करने पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका सिविल डाउन हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, राइट? एंड आपको शायद लोन नहीं मिलेगा, बट आप पे कुछ केस वगैरह नहीं होता ज्यादा, अगर आपने 10 20 30 हजार, लाख 2 लाख रुपए का लोन ले रखा है, डिफॉल्ट कर दिया तो। बट यूएस में ना ये बहुत बड़ा क्राइम है। यूएस में अगर आपने $1000 का लोन लिया है या फिर आपने कुछ भी ऐसा काम करा है जो आपने रीपे नहीं करा है किसी को, तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन ले लिया जाता है, राइट? अब जैसे कि मैंने बताया कि एसएसएन नंबर में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, आप कहाँ पे रहते हो, आपका घर कहाँ पे, आपकी जॉब कहाँ पे, सब चीजें हैं। अगर मैं एक क्लेम एक्सपर्ट हूं, लेट से मेरा काम है क्लेम रिकवरी करवाने का, मुझे आपका एड्रेस तो चाहिए होगा ना, राइट? मुझे आपका ऑफिस का तो चाहिए होगा ना कि आपका ऑफिस कहाँ पे है। तो मैं आपके एसएसएन नंबर को नोट नहीं कर रहा अपने पास, बट आपके एसएसएन नंबर के अगेंस्ट आपका एड्रेस क्या है, आपकी वो क्या है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है, प्लेस ऑफ ऑक्यूपेशन क्या है, वो मेरे को पता लग रही है। अब मैं रिकवरी करने वहीं से ही तो जाऊंगा ना। तो टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्सेल ओपन करके बताता हूँ, अगर हमें समझ में नहीं आया तो। अब मेरे को पता है एक्स 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 कोई एसएसएन नंबर है, एक्चुअल नंबर क्या है मेरे को नहीं पता, बट मुझे उससे क्लेम रिकवरी करनी है। तो मेरे को पता है उसका घर का एड्रेस दिल्ली है, उसका जॉब का एड्रेस दिल्ली है, तो मैं वहां पे जाके उससे क्लेम रिकवरी कर लूंगा। ठीक है? मास्क कन्वर्सन नंबर इलीगली नहीं हो सकता, नहीं। एक टर्म होता है एनडीए, इट इज कॉल्ड एज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसमें आप कंपनी का डेटा या फिर आप अपने क्लाइंट का डेटा कहीं पे भी एक्सपोज नहीं कर सकते। एंड देयर इज अ रीजन, अगर आपने इसको एक्सपोज कर दिया तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। एंड इसकी वजह से कई ऑफिसेस में जहां पे आप इंपॉर्टेंट डेटा से डील कर रहे हो, वहां पे आपको फोन्स अलाउड नहीं होते हैं, ताकि आप स्क्रीनशॉट ना ले लो। बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स है, अमेरिकन एक्सप्रेस उनमें से एक फर्म है, बैंकिंग का डेटा है वो आपको फोन नहीं ले जाने दे सकते, राइट? एंड बार्कलेज के साथ भी यही है, ईएक्सएल के साथ भी यही है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं। मैंने भी उस एनवायरमेंट में काम करा जहाँ पे फोन मेरे को मेरे ऑफिस के उसमें अलाउड नहीं था, फ्लोर पे। क्लियर आनंद? यस। और सेकंड चीज, आपने मास्क करने के बाद एसएसएन नंबर। अब मेरे को एक बात बताओ ना, अब इसके अंदर एक्स 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 लिखा है मैंने, अब यहाँ पे 1 2 3 4 है, ABCD है, EFGH है, या फिर XZYW है, मुझे क्या पता? नंबर मास्क इनका मतलब आपने छुपा रखा है उसको।
राइट, तो आपको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे वैसे भी। ओके, एनी मोर क्वेश्चन, कोई और डाउट कुछ किसी को? हाउ कैन अ डेटा एनालिस्ट टीम इफेक्टिवली सेफगार्ड सेंसिटिव डेटा एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम पोटेंशियल साइबर क्राइम थ्रेट्स? ओके, सो मनीष, होता क्या है ना, देखो जब भी हम डेटा को फेच करते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सारा डेटा फेच नहीं करते, राइट? अगर मेरे को एनालिसिस करना है कि देखो ये एसएसएन नंबर ना सबका यूनिक होगा, तो यूनिक होने की वजह से मुझे कुछ एनालिसिस करने को नहीं मिलेगा इस पे, राइट? बट एड्रेस, जॉब, वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी सैलरी क्या है, वो उनकी कंपनी का नाम क्या है, मुझे ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये जरूरी है ज्यादा, राइट? फर्स्ट चीज तो ये हो गई। सेकंड चीज आपने बोला कि सेफ गार्ड करने वाली चीज, सेंसिटिव डेटा का प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आप देखोगे कई जगह ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास ये एक्सेल है, मेरे क्लाइंट का डेटा है यहाँ पे, मैं इसको कॉपी करके अपने लोकल मशीन पर नहीं पेश कर सकता। वर्चुअल मशीन्स होती हैं इसलिए कि आपको कॉपी पेस्ट अलाउड नहीं होता है उसके अंदर, राइट? अगर आपने कॉपी पेस्ट कर लिया या फिर आप अपनी ईमेल से पर्सनल ईमेल पे कुछ भेज दिया तो वो तुरंत फ्लैग हो जाती है। प्लस एक टर्म होती है गेटवे नाम से। गेटवे मींस कि आप सिर्फ वही डेटा आपके पास जाएगा जो आपका क्लाइंट अलाउ करेगा। अगर क्लाइंट ने बोल दिया कि मेरे को ये डेटा नहीं भेजना है तो आपके पास वो डेटा कभी नहीं आएगा। क्लियर? ओके, एनी अदर क्वेश्चन, क्वेरी, कोई डाउट? Okay, I'm jumping to the next, right? So we were talking about sports analytics, वहां से हम IPL पे आ गए, इन सब चीजों पे आ गए। So एक और केस स्टडी है। सब लोग ने F1 फॉर्मूला 1 रेसेस देखी हैं, राइट? एंड आपने देखा होगा कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना कोई भी गाड़ी रुकती है, उसके टायर्स चेंज होते हैं, उसके फ्लूइड्स रिफिल करते हैं, कूलेंट डालते हैं, राइट? एंड पानी पिलाते हैं, जो भी सारी चीजें हैं, मतलब जो भी चीजें हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज ना रैंडमली नहीं है। लाइक ड्राइवर को नहीं पता, ही इज रनिंग हिज कार एट 300 किलोमीटर्स पर आवर, उसको नहीं पता लगेगा कि उसके टायर्स कब खत्म होने वाले हैं, या फिर उसके इंजन में फ्यूल कब खत्म हो रहा है, या फिर कूलेंट कब खत्म हो रहा है, राइट? इसके लिए सेंसर्स यूज होते हैं एंड F1 में ये एक्चुअल में होता है, राइट? अब सेंसर्स कैसे कैसे टाइप के होते हैं आप देखो, एक कार के अंदर ऑलमोस्ट 150 से 300 सेंसर्स होते हैं, राइट? और सेंसर तो हमारी गाड़ियों में भी हैं। अगर आप देखोगे सेंट्रल लॉकिंग एक सेंसर है, XUV 700 एक गाड़ी आ रही है, उसके अंदर एडास है, उसके अंदर एक सेंसर है जो ऑटोमेटिकली ब्रेक्स लगा देता है या फिर एक्सेलरेट कर देता है। एयर बैग्स भी एक सेंसर है एक तरीके से। तो नॉर्मल लाइफ में भी एंड आप देखोगे स्पोर्ट्स के अंदर भी गाड़ियों में भी सेंसर्स दिख रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है, वहां वाले सेंसर्स हमारी सेफ्टी के लिए हैं एंड ये वाले सेंसर्स एक रेस को जीतने के लिए हैं, स्ट्रेटेजिकली डिसीजन बनाने के लिए। अब आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई F1 रेस होती है तो ना सबके बूथ्स होते हैं जहां पे वो गाड़ी रोकते हैं, देन सब चीजें चेंज होती हैं। अब आप देखो 300 to 400 GB पर कार एवरी वीकेंड डेटा ट्रांसफर होता है, राइट? और during a 2-hour race the ECU will receive and send more than 750 million data points। 75 करोड़ डेटा पॉइंट्स यानी कि 75 करोड़ डेटा का आना जाना होता है 2 घंटे की रेस के अंदर। अब अगर कोई ड्राइवर रोक रहा है अपने बूथ पे आके, तो वो उसको बोला गया है ऊपर से कि आपके टायर में प्रेशर इतना कम हो गया है या फिर डेंसिटी इतनी खत्म हो गई है, आके रोक लो, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, लेट्स से मैं एक F1 ड्राइवर हूं, राइट? मैं ये गाड़ी चलाता हूँ F1 ड्राइवर, मेरा ना लास्ट के 2 लैप रह रहे हैं, बट मेरा जो ये वाला टायर है ना ये 20% बचा हुआ है, मतलब इन तीनों में से कोई सा भी एक टायर 20% बचा हुआ है और मेरे को 2 लैप लेने हैं अभी। अब मेरे को ये भी पता है कि अगर मैंने टायर, देखो टायर तो सारे ही चेंज होंगे, ये तो है नहीं एक टायर चेंज होगा, 10 से 12 सेकंड लग जाते हैं एक गाड़ी को पूरा दोबारा रेडी होने में। तो 10 से 12 सेकंड की वजह से शायद मैं रेस में पीछे हो जाऊं या फिर मैं ना जीतूं, राइट? तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास 20% मेरा टायर बचा हुआ है तो क्या वो मेरे को 2 लैप लगा पाएगा? अगर 2 लैप लगाता है तो मैं 10 सेकंड का टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं रेस जीत के गाड़ी बंद कर दूंगा सीधे, राइट?
तो कुछ सेंसर्स होते हैं जो F1 कार्स में भी है, जैसे आपकी स्पीड ऑफ द कार के लिए, कॉर्नरिंग स्पीड कितनी है, आपका बायोमेट्रिक डेटा की आपकी पल्स रेट कितनी जा रही है, आपका हार्ट रेट कितना चल रहा है, आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है, राइट, जी फोर्स कितनी लग रही है आपके ऊपर, बिकॉज आई गेस 3 या 4 जी पे आई गेस आदमी फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो वो इसको भी मॉनिटर करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यार 3 जी फोर्स के बाद आदमी बेहोश हो जाए तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, हो सकता है मर भी जाए, राइट। अब इनकी सस्पेंशन की ड्यूरेबिलिटी देख रहे होते हैं, टायर वियर देखते हैं कि टायर कितना वियर हो गया, पोजीशन ऑफ पेडल्स देखते हैं, राइट, एग्जैक्ट पोजीशन जीपीएस में जा रही होती है, रोटेशनल स्पीड जा रही होती है, टेम्परेचर ऑफ ब्रेक्स देखते हैं कि कहीं ब्रेक्स फेल ना हो जाए, राइट। अगर किसी ब्रेक शू की जो लिमिट है वो है लेट सपोज 120 डिग्री सेल्सियस, राइट, मेरे को पता है मेरा एक लैप रह रहा है बट मेरा 105 डिग्री पे आ रखा है, तो मैं डेफिनेटली एक लैप का ट्राई मार लूंगा कि कोई बात नहीं 15 डिग्री तो नहीं पड़ेगा, राइट। बट अगर मैं रोक लूंगा, मेरे ब्रेक शू चेंज करने पड़ेंगे, तो हो सकता है मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाए एंड मैं रेस हारता हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा पैसा लगा होता है इसमें, स्पॉन्सर्स का, कार्स का, इनकी प्रैक्टिस होती है, इनकी पूरी टीम होती है, तो बहुत सारा पैसा लग रहा होता है, तो ये चाहते हैं जीतना हमेशा, ये दे वांट एक्चुअली टू विन एवरी पर्टिकुलर रेस, राइट। सो वहां पे डेटा काम आता है। Admin, sir, how can data analytics course or training help students in getting jobs and types of jobs? Okay. यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक गुरु की जरूरत तो होती है सबको, राइट। एंड सो सॉरी, मैं थोड़ा लेमन में ही बताता हूँ, थोड़ा रिलेट हो जाए सर किसी को। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं यार जो ओलंपिया में वो कर रहे होते हैं, compete करते हैं, उनके पास भी कोचेस होते हैं। बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार, इंडियन क्रिकेट टीम हो गई, या फिर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हो गए, या फिर किक बॉक्सिंग चैंपियंस हो गए, मार्शल आर्टिस्ट हो गए, या फिर मान लो किसी और स्पोर्ट्स में, सबके पास कोच होते हैं, राइट, जो कि गाइड करते हैं आपको कि आप पहले ये करो या बाद में ऐसे करो, या फिर किसी और दिन ऐसे करो, या फिर उसके बाद ऐसे करो। अगर आप रैंडमली जाओगे, देखो, या तो आप रिसर्च बहुत अच्छी करो, राइट, कि आप अच्छे लोगों से बात करो, उन सीनियर्स से बात करो जो डेटा एनालिटिक्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनसे या तो आप पूछ सकते हो। अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं या फिर लोग नहीं हेल्प कर सकते, तो वेस्पायर जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एडटेक प्लेटफॉर्म है, जो डेफिनेटली आपको वो कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हैं, राइट, आपको प्रोजेक्ट्स बनवाती हैं आपके लिए, सो दैट आप जॉब रेडी हो जाओ, प्रिपेयर्ड हो जाओ कि आप किस तरीके से क्या क्या चीजें कर सकते हो, आपको किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना। एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ जॉब्स के बारे में बोला कि देखो, जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया कि बहुत सारी चीजें हैं डेटा एनालिटिक्स के अंदर। डेटा इंजीनियर्स भी होते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स भी होते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियर्स भी होते हैं, डेटाबेस डेवलपर्स भी होते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस वाले बंदे होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं। 7-8 प्रोफाइल्स मिलकर ये पूरी इंडस्ट्री को बना रही है, राइट। तो आप एडटेक प्लेटफॉर्म से जुड़ोगे, आप वेस्टफायर से जुड़ोगे, या फिर आप खुद पढ़ोगे, देन आपके पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, राइट। कुछ प्रोजेक्ट्स भी हम लोग बनवाते हैं अपने एंड से, सो दैट आपको कस्टम क्लैरिटी रहे, पूरी कस्टमाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके लिए, जिससे आपको क्लैरिटी रहे, ताकि आप इंटरव्यू में ब्लैंक ना जाओ बिल्कुल भी। एंड जॉब्स के बारे में भी मत सोचो ज्यादा, फोकस ऑन लर्निंग। आप ये ट्राई करो कि आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो रखी हो। एनीथिंग एल्स? So I think we have spent, sir, any group for Gujarat jobs? देव स्पेसिफिकली डेमोग्राफिकली तो मेरे को नहीं पता कि कोई ग्रुप्स वगैरह है कि नहीं है, बट सी, इफ यू वांट टू कम इनटू इंडस्ट्री, आप ट्रेनिंग लो, आप पढ़ाई करो, आप जॉब गुड़गांव में लो, चेन्नई में लो, बैंगलोर में लो, 2 साल काम करो, देन गुजरात वापस चले जाओ, राइट। तो स्पेसिफिकली ऐसे, how do we ensure controls to prevent any wrong interpretation of several millions of data point by system? Okay, so Nishchay, there's a term called data governance, right? Data governance and GDPR. आप GDPR की बात करोगे तो आप GDPR क्या है? General Data Protection Regulation, right? So GDPR ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है कि आपकी जो डेटा पॉइंट्स हैं वो सारे
सिक्योर्ड हो, ऑथेंटिसिटी हो उसके अंदर। डेटा गवर्नेंस एक ऐसी चीज है जहां पे आप मैनुअली डेटा को चेक करते हो विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स या फिर किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के थ्रू, ताकि आपके पास जो डेटा आ रहा है वो एक्चुअल डेटा हो, रॉन्ग डेटा ना हो, आउटलायर्स ना हो उसके अंदर ज्यादा, राइट, एंड एफिशिएंटली मेंटेन डेटा हो। Sir, can you please spell the names of those websites which you mentioned into the chat? Which website, Anant? Okay, Wayspire website. Website which you said can help us in our projects. No, I didn't said any website. I said कि edtech platforms हैं, कुछ coaching institutes. Wayspire के पास भी है ऐसी चीजें. Wayspire भी projects करवाता है. We do have some good projects with us जो कि industry में use हो रहे हैं. Live projects भी होते हैं. So that आपको उस चीज के regarding हाँ, so that आपको उस चीज के regarding थोड़ी clarity आ जाए. नॉट स्पेसिफिकली एनी वेबसाइट यार, आप कैगल वगैरह होते हैं, कैगल पे डेटा सेट्स होते हैं, बट आई वुड से कि आप पहले लर्निंग पे फोकस करो ज्यादा. सर, एनी गाइडेंस फॉर एनी स्टूडेंट विच कोर्स टू चूज आफ्टर 12th फॉर बेटर फ्यूचर? सो जतिन, एज यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर डेटा एनालिटिक्स, आई वुड से गो फॉर डेटा एनालिटिक्स भाई. बाय एनी अदर कोर्स. बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, डेटा कहीं नहीं जाने वाला. बहुत स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, बहुत यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं. और आई यूजुअली से दिस थिंग टू एवरीवन कि कुछ टाइम की बात है, एक नॉर्मल ठेले पे जो बनानास बेच रहा है उसके पास भी डैशबोर्ड्स होगा एनालिटिक्स का. तो एनरोल टू वेस्पायर, टॉक टू देम, दे लेट यू नो कि ये क्या क्या चीजें हैं. डोंट गो फॉर बिग कोर्सेज आई वुड से, मतलब जो 2.5-3-4 लाख के कोर्सेज बिक रहे हैं, आई वुड से उनके पास मत जाओ. रीजन बीइंग, आपने 3 लाख अगर स्पेंड भी कर दिया एंड देन आपको समझ में नहीं आया, आपको बहुत रिग्रेट होगा, राइट. गो फॉर ऑर्गेनाइजेशन लाइक वेस्पायर जो बहुत आपको लो कॉस्ट में आपको इंटर्नशिप दे रहे हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं. बिकॉज अगर आपको लेट्स से यार 3 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है. तो 3 लाख इतना बड़ा बड़ा मत करो कि आपको आपको बोलेंगे ये लोग कि IIM से करवा रहे हैं, इससे करवा रहे हैं, बट इट इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ मच clarity you have with respect to every concept of data analytics. What are different tools of data analytics and platform to learn them? Okay, so बहुत सारी चीजें हैं रजनीकांत. आई वुड से पावर BI है, SQL है, AWS है, Azure है, राइट, और Python है, R है. बहुत सारी चीजें हैं यार, मतलब आप टिप्स पे काउंट नहीं कर पाओगे. बहुत टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बहुत नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन रही हैं, बहुत नए नए टूल्स बन रहे हैं, मतलब हर वीक में नया टूल आ रहा है. बट आई वुड से कि पावर BI, SQL इट्स द बेस. आप सबसे पहले अपना बेस रेडी करो. डेटा एनालिटिक्स करनी तो पहले डेटा के बारे में समझना पड़ेगा. डेटा आप समझो एक्सेल पहले, सबसे पहले कि एक्सेल में क्या क्या चीजें होती हैं. देन आप SQL पे आओ डेटाबेस के अंदर. देन आप डेटा को रिप्रेजेंट करने के ऊपर आओ कि कैसे हिस्टोरिकल डेटा दिखाना है. देन गो फॉर आगे मशीन लर्निंग एंड AI. जतिन, थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस. थैंक्स वेरी मच जतिन भाई. प्रवश ठाकुर, SQL कैसा रहेगा सर सीखना? बिल्कुल अच्छा रहेगा भाई. SQL सबसे पहले सीखना चाहिए. लोग गलती करते हैं, सीधे मशीन लर्निंग पे चले जाते हैं. पहले डेटा के बारे में सीखो, और SQL से पहले एक्सेल देखो. पिवट टेबल्स होती हैं, ग्राफ्स होते हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, HLOOKUP, VLOOKUP, फॉर्मूलाज, बहुत सारी चीजें. तो वो देखो सबसे पहले. डेटा पे फोकस करो सबसे पहले. Kunal, we'll Yeah, just Abhishek. start this piece shortly, and if anyone has any queries or anything like that, they can ask in the next 5 to 10 minutes. Yeah. And if any students are looking for webinar certifications and how their experience was in this webinar, I'll just share the Google form down below, okay, in the chat itself. Okay. एक्सेल आता है, SQL में प्रॉब्लम आती है. SQL पढ़ो भाई, फिर गो फॉर SQL. बेसिक्स देखो सबसे पहले. सिलेक्ट कमांड क्या होती है, अपडेट कमांड क्या होती है, इंसर्ट कमांड क्या होती है, डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, फेच करने के लिए क्या चाहिए, फिल्टर्स कैसे लगाते हैं.
start learning something, like एक topic daily learn करो, and then eventually 1 महीने बाद you will be a pro. वो हो जाता है सर, तो फिर क्या नहीं होता ये बताओ. प्रवेश जी या बाकी कोई स्टूडेंट भी क्वेश्चंस अपने दे कैन आस्क, not only by texting, they can talk to Kunal sir also. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. हाँ, अगर अनम्यूट करके बोलना है तो आप बोल सकते हैं. Yes, because this is the questionnaire session now. If anybody has any questions, they can unmute themselves and then talk to Kunal sir. anyone. गाइस आखिरी के 2-3 मिनट है, अगर आपको पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो. Hi Kunal, so what is the duration of the course offered by Whisper? So I guess it's 2.5 months for the initial thing. Like it's a bootstrap, I would say bootstrap program in which you will be able to get good understanding of what data analytics is, and how to analyze data, what tools to use, right? And then do some sort of projects and in-depth course for data analytics. It will take some time, 6 to 8 months it can take. The rest can be cleared by Ashish. Can maybe clear these things? Yeah, I'll just clear. So basically, Vespa is an e-learning platform where we're providing training and internship programs. And our programs are for 2 months itself, where we have various industrial experts who will be training you in the program itself of your specialization. So if you're looking for business analytics, Kunal sir will be teaching you. And for data science, we have a different mentor itself. So yeah, this is basically for students who want to upskill and looking for any job placements as well. So you can just check our website, waspire.in. I'll just share it on the chat itself. Okay. Anyone else? Hello, sir. Can you tell something about the chat GPT and data analysis, the relations? Chat GPT. यार देखो, I would say कि Chat GPT के पास बहुत सारा बल्क में डेटा है, राइट? एंड वो बस आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आपको डेटा फेच करके दे देता है. सो लेट्स से अगर आपने बोला कि मेरे को विराट कोहली की सेंचुरीज बताओ किस किस दिन करी थी, तो उसके पास हिस्टोरिकल डेटा बहुत है. एंड डेटा एनालिसिस का आई डोंट थिंक सो उससे कोई लेना देना है, बट लाइक एज अ प्रिंसिपल वहां पे डेटा एनालाइज ही हो रहा है. अगर आप उससे पूछो कि give me the best hashtags for my traveling reel, right? वो आपको कुछ आपको टैग्स देगा रील्स के लिए. तो उसके पास जो हिस्टोरिकल डेटा है ना, वो उसमें से बेस्ट जो उसके हैशटैग्स हैं या फिर जो उसने एंटिसिपेट कर रहे हैं कुछ एनालिसिस करके वो दे रहा है. बाकी डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है उसका यार. इट्स सॉर्ट ऑफ अ हेल्पिंग टूल फॉर यू. वो वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है. एनालिसिस आपको चैट जीपीटी नहीं सिखा सकता. चैट जीपीटी आपको बस ऑटोमेट करने में हेल्प कर सकता है. एनालिसिस आपको खुद करनी पड़ेगी, खुद का ब्रेन यूज करना पड़ेगा, खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा. Okay, thank you, sir. Welcome. Anyone else? No, sir. Okay. Thank you, Kunal, for being with us here today, like from Wastepad itself. So thank you very much. Thanks very much for having me on this webinar, Abhishek. Yeah, thank you. So I think we can. Thank you, Kunal, for joining the webinar. Thank you very much. Thank you very much. Thanks, Vishal. Thanks, Pravas. Thanks, Ashish. Thank you, sir. So if anyone wants to learn from Kunal sir, they can. Yeah, they can just fill the form itself, or they can just contact us
through the website. Also, Abhishek, just one more thing. Yeah. I'm just putting up my LinkedIn profile link on the chat. Yeah, sure. People who No want to problem. connect to me on LinkedIn, they can directly do it. Just give me a moment. Yeah, sure. Sir, before winding the session, Kunal sir, can you tell about your journey of learning data analysis and all? Okay. Yeah, so देखो, I'll tell you one thing कि I am graduated from electronics and communication engineering. So I do not have a tech background, like tech as in programming tech, right? So I would say I was little bit lucky in 2017 when I was starting to look up for job and do job hunting. So there was a little bit of luck jahan pe I just went for an interview and the interviewing guy called me and he said कि आप सोफे पे बैठ जाओ and then there was a whiteboard in front of me and वहां पे 5 क्वेश्चंस लिखे हुए थे SQL के database के, right? So I just give it a read and just clicked a photo of those 5 questions and then came back to home and उसको मैंने रट्टा मार लिया and went next day and solve those questions and जानबूझ के 5 में से एक क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया and then I was hired there. I worked there for an year, but the thing is कि मेरे को ये चीज clarity हो गई थी कि see someone has given me chance to enter into this industry, so now I should focus on learning, right? Then industry में आना तो easy था, but sustain करना बहुत मुश्किल होता है. So competition बहुत ज्यादा होता है, right? आप graduate होते हो, आपको नहीं पता होता कि आपको किस पे focus करना है, किस पे नहीं करना, but job teaches you a lot. So वहां से I started learning SQL, then went to Power BI, right? Then went to Tableau, then went to ETL platforms, Azure Data Factory, cloud computing के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा. Then handle good amount of projects. So I worked for 14, 15, 16 hours a day, I would say, and not because someone was forcing me, because I wanted to learn something. मेरे को बहुत मजा आने लग गया था वो चीज करने में. And eventually मेरे को monetary benefits बाद में दिखे अपने करियर में 2-3 साल बाद. स्टार्टिंग में अगर आप 14-15 घंटे काम भी कर रहे हो तो आपको लोग बोलेंगे कि यार क्यों कर रहे हो इतना काम, एंजॉय करो, घूमो फिरो, बट 2-3 साल बाद उसका फ्रूट मिलता है आपको. तो यही चीज मेरे साथ हुई थी. टफ नहीं था, बस आप ये समझ लो कि मेरे सामने मेरे को दिख रहा था कि मेरे को आगे बढ़ना है. आई वांट टू ईगरली लर्न न्यू थिंग्स एंड एस्केलेट माय करियर आगे, और एक्सेलरेट करना है, बहुत तेज से भागना है. तो मैंने लर्निंग पे हमेशा फोकस रखी, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स. लर्निंग मेरा प्रायोरिटी फोकस था. आई हैव नॉट डन एनी सर्टिफिकेशन, बट मेरे को जो चीज पता है वो मेरी टिप्स पे है. लाइक आई एम द बेस्ट in my organization or in my team in what I do. I know कि मेरे से बेहतर वो काम कोई और नहीं कर सकता. They do something else, वो उनका अलग फोर्टे है, अलग जॉनरा है. बट अगर मैं पावर बीआई की रिपोर्ट्स बनाता हूं तो आई शुड बी द पर्सन जो जिससे अच्छी रिपोर्ट्स कोई बना नहीं सकता, राइट? सो एक ही एटीट्यूड रखना जरूरी है आपको सबसे ज्यादा. वो करोगे तो बाकी ऑल सॉर्टेड है यार. मतलब जॉब करने के लिए आप काम करने ही आयो, तो काम करने आए तो काम करो, मजा भी आएगा तो काम करो. अब इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले आइडेंटिफाई करो कि आपको डेटा एनालिटिक्स करना भी है कि नहीं करना, बाकी ऑल सॉर्टेड है यार. Sir, as I am currently working in area manager in tractor industry, so it would be worthy for me to learn data analysis, so like SQL and Power BI and all. यार सी देखो, आई टेल यू वन थिंग कि वो चीज करो जो मार्केट में आने वाले 10 साल तक टिकने वाली है, राइट? 2013 में सिविल इंजीनियरिंग बूम पे थी. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने सिविल इंजीनियरिंग ली थी. ग्रेजुएट है वो 2017 के अंदर, बट 2017 तक सिविल इंडस्ट्री पूरी पीक पे जाके डिक्लाइन पे आ गई थी. तो कुछ फायदा नहीं हुआ ना. आप ये देखो कि अभी क्या काम कर रहा है. अगर आप अभी जावा पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है उसका. मतलब आपको अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में घुसना है तो ठीक है, बट अगर अभी आप जावा को कोई नहीं पूछ रहा. अभी पाइथन, मोजो, पर्ल, रूबी ऑन रेल्स, बहुत सारी लैंग्वेजेस आ रखी हैं. तो आप वो चीज पढ़ो जो मार्केट में टिकने वाली है 5 साल 10 साल के लिए. क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ो. क्लाउड कंप्यूटिंग 10 साल तक कहीं नहीं जा रहा. डेटा बहुत बढ़ रहा है. लोग अपने ऑफिस में डेटा स्टोर नहीं करते सर्वर्स के अंदर, क्लाउड स्टोरेज पे ही स्टोर होता है. तो वहीं पे होगा और वो टिकेगा 5-10 सालों तक आराम से. तो 1 साल दो अपने आप को, फोकस करो उस पे, लर्निंग लो, पढ़ाई करो, कोर्सेज करो, नॉलेज लो, एंड देन करो स्टार्ट.
Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you very much, Jatin. Everyone, please fill the feedback form itself. And if you're willing or looking to study from Kunal sir, you can let us know. The contact number is there as well. Okay, so thank you very much, everyone. I hope आज का session बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, and we'll try to do some more sessions like this. Yeah, we'll try to make it much better. Yeah, we'll try to make it better. It was already Our better, sessions. Abhishek. We'll make it much better. Chaliye, okay, so Much better. let's take a leave and see you soon.